اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل نمبر 3، انبیاء علیہ السلام کی احتیاج اور انسان کی پرورش کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، پس تو بھی ان کی رہنمائی کی پیروی کر۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آگے پیچھے کھینچنے والے یعنی نبی رئیس ہیں اور عالم پیچھے سے ہانکنے والے ہیں۔ واضح رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ملک اور ملکوت کے طلسم کو بنایا تو روح کو قالب انسانی کے تعلق دے کر اس طلسم کو ایسا مضبوط اور مربوط کر دیا اور اس کے بند اس قدر سخت کر دیے کہ خواہ انسان یا فرشتہ کتنا ہی عقلی نظر سے کوشش کرے وہ کبھی کھل نہیں سکتا، اس واسطے کہ وہ 70,000 نورانی اور ظلمانی پردوں سے بنایا گیا ہے۔ اگر وہ کھل سکتا تو لطیف روح دنیا کے قید خانے میں ہرگز نہ ٹھہرتی۔ جب کوئی بادشاہ کسی شخص کو قید خانے میں بھیجتا ہے تو قید خانے کا دروازہ اس طرح بند کرتا ہے کہ قیدی اسے کھول نہ سکے۔ وہ طلسم اعظم جو اس نے خود اپنی خداوندی سے بنایا اور کسی کو اس کی اطلاع نہ دی، ہم نے انہیں زمین و آسمان کے بنانے اور نیز ان کی اپنے جانوں کی پیدائش کے متعلق ذرا خبر نہیں کی۔ اس کا کھولنے والا بھی خود ہی ہے اور ان سب کی چابی بھی اسی کے ہاتھ ہے۔ آسمانوں اور زمین کی چابیاں اسی کے ہاتھ ہیں، اور پھر اگر کھولنا چاہے تو یا وہ خود کھول سکتا ہے یا جس کے ہاتھ میں وہ چابی دے۔ بس واضح رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بنی آدم زمین پر اس کے خلیفہ بنے تو پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اور حوا کو بغیر ماں کے صرف باپ سے پیدا کیا تاکہ جوڑا بن جائے، پھر ان سے اولاد پیدا کی۔ اسی طرح جب چاہا کہ بشریت کے طلسم اعظم کو کھولے اور انسانی روح کو قالب میں بند رہنے کی قید سے خلاصی دے اور پھر اسے عالم قرب میں پہنچائے، ماں بہت سے فوائد کے جو اس نے اثناء سفر میں حاصل کیے ہوں اور بہت سی غنیمتوں کے جو اس کے ہاتھ آئی ہوں، جیسا کہ سفر کرو، صحت کرو اور غنیمت کا مالوں کا مقتضا ہے، جو ہر کرن اور ہر عہد میں چند دے کو اپنی خلقت سے برگزیدہ کیا اور اپنے تمام بندوں میں سے ممتاز فرمایا اور نظر عنایت سے مخصوص کیا۔ لیکن اس سعادت کا بیج بے واسطگی کے مقام پر عالم ارواح میں رکھا تھا، تبھی اسے یہاں قبولیت اور قرب کا ثمرہ ملا، جیسا کہ خود فرمایا ہے، ارواح جمع کیا ہوا لشکر ہے۔ عہد اول ہی میں ارواح کی 4 صفیں کی گئیں۔ پہلی صف میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح تھیں جو بے واسطگی کے مقام پر تھیں، دوسری صف میں اولیاء اللہ کی ارواح تھیں، تیسری صف میں مومنوں کی اور چوتھی میں کافروں کی۔ پس انبیاء علیہ السلام کی روحیں جو پہلی صف میں تھیں، بے واسطگی کے مقام ہونے کے سبب خاص نظر سے انہیں فیض حق پہنچتا رہا، جس کی وجہ سے ان میں یہ استعداد اور قابلیت ہو گئی کہ دنیا میں بے واسطہ غیب کے رک کے انہیں ملیں اور فضل حق کا فیضان جاری کریں اور بشریت کے طلسم کشائی کی چابی حق تعالیٰ سے حاصل کریں اور آدم کے طلسم اعظم کو کھولیں، اور لوگ بھی ان کی رہنمائی سے اس طلسم کو کھولیں کہ یعنی انبیاء کو میں نے خود بلا واسطہ طلسم کشائی کا علم سکھایا، اس واسطے کہ وہ کئی سال بے واسطگی کے مقام میں رہ کر ہماری نظر عنایت کی تابش حاصل کر چکے ہیں اور اس قابل ہو گئے ہیں کہ جذبات الوہیت کے تصرفات سے غیب کی راہ ان کے لیے طلسمات کا دروازہ کھولوں اور ان کو الرحمن علی القرآن کے مدرسہ میں طلسم کشائی کے اسرار کی تعلیم دوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب حکمت اور نبوت دی گئی ہے، اور وہ لوگ جو عالم ارواح میں دوسری صف میں تھے اور ارواح انبیاء کے حجاب کے پیچھے ان کو ہمارے فضل کا فیضان حاصل ہوا، آج بغیر وسیلہ ہماری بارگاہ کی راہ نہیں چل سکتے اور ہمارے بنائے ہوئے طلسم کو نہیں کھول سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا وہی طریق ہے جو پہلے گزر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے طریق میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں تو پائے گا، تاکہ قبول دعوت کی دکان میں شاگردی کریں، اور یہی میری سیدھی راہ ہے، تم اس کی پیروی کرو اور دوسرے رستوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تم کو اس کی راہ سے جدا کر دیں گے کہ استقامت کی شرط بجا لائیں۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے، مصرع حقائق انبیاء کے مدرسہ میں پہلے شریعت کی الف بے سیکھنی چاہیے، کیونکہ شرع کا ہر ایک امر
اس طلسم اعظم کی بندشوں کی چابی ہے، جس کی شرح اس کے اپنے مقام پر انشاءاللہ کی جائے گی، اور جب اوامر و نواہی میں سے ہر ایک امر کی واقعی طور پر اس کے اپنے مقام میں پابندی کرے گا تو طلسموں کی بندشیں کھل جائیں گی، اور الطاف حق کی نفقات کی نسیم اسی راہ سے تیری جان کے دماغ میں پہنچے گی کہ بے شک امید کے لیے تمہارے زمانے کے دنوں میں خوشبوئیں ہیں، دیکھو ان کے در پہ ہو۔ نفقات سے تعرض شرع کے اماور و نواہی کو بجا لانا ہے۔ ہر ایک قدم کے بدلے جو شرع میں مطابقت کے قانون کے موافق رکھا جاتا ہے، بارگاہ الہی میں قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی جس عالم سے تو آیا ہے اس کی ایک منزل طے ہو جاتی ہے۔ مقرب میری طرف اس طرح قریب نہیں ہوتے جیسا کہ وہ فرائض کو ادا کرتے ہیں، اور جب اس راہ پر تو صدق سے قدم رکھے گا تو عنایت الہی تیرا استقبال کرے گی، تیری دستگیری اور فریاد رسی کرے گی۔ جو میری طرف بالشت بر قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ہاتھ بر بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ہاتھ بر بڑھتا ہے میں 2 گز بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ جب معلوم ہو گیا کہ انسانی وجود کے بند شریعت کی چابی کے سوا نہیں کھل سکتے، اور یہ بھی تحقیق ہو گیا کہ شریعت کے لیے کوئی صاحب شریعت ہونا چاہیے، اور وہ انبیاء علیہم السلام ہے، باقی وجوہات انشاءاللہ احتیاج شیخ کی فصل میں بیان کی جائیں گی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب شیخ کی ضرورت ہے تو پیغمبر کی اس سے بدرجہ اولا ضرورت ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ فصل نمبر 4، مختلف دینوں کے نسخ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت ہونے کے بیان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کا باپ تو نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے اور خاتم النبیین ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں کے سبب فضیلت حاصل ہے۔ میرے لیے زمین مسجد اور اس کی مٹی پاکیزہ بنائی گئی، غنیمت کا مال میرے لیے حلال کیا گیا، حسب منشا میری مدد کی گئی، شفاعت کا درجہ مجھے عطا کیا گیا، تمام خلقت کی طرف میں بھیجا گیا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میں خاتم النبیین ہوں گا۔ واضح رہے کہ پاک پروردگار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو آدم علیہ السلام اور لوگوں سے منقطع کر کے عالم نبوت اور رسالت سے ملاتا ہے کہ ما کانا محمد ابا آدم من رجالکم ولکم رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے یا تمہارے عالم سے نہ تھے، بلکہ رسول خدا اور خاتم انبیاء تھے۔ تمام جہان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار سے روشن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آب و گل سے کیا آشنائی؟ یہ اس واسطے ہے کہ تمام خلقت کو معلوم ہو جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام کے بچے نہ تھے، بلکہ آدم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے تھے۔ جیسا کہ مصنف کہتا ہے، اگر کوئی باز بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھا ہو اور کسی شکار کی طلب میں اڑے اور اسی اثنا میں آرام کرنے کے لیے کسی بڑیا کی دیوار پر جا بیٹھے تو اس سے وہ باز بڑیا کی ملکیت نہیں ہو جاتا، خواہ وہ وہاں کتنی ہی دیر کیوں نہ ٹھہرا رہے۔ جب ڈھولک یا سیٹی سنے گا فوراً اڑ کر بادشاہ کے ہاتھ پر آ بیٹھے گا۔ مصنف کہتا ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے دنیا سے کیا سروکار؟ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار گرمی کے دنوں میں سفر کرے اور کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سوار ہو کر چل دے۔ میں کہاں اور دنیا کہاں؟ میں وہ شخص ہوں کہ مقام سدرہ میں میرے روبرو ملک اور ملکوت کے تمام جواہرات اور نفیس چیزیں جو خزانہ غیب میں تھیں لائی گئیں، جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، لیکن میں نے آنکھ اٹھا کر بھی کسی چیز کی طرف نگاہ تک نہ کی۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ جب کی نہ نافرمانی کی، بلکہ اپنے وجود کی نقدی بھی اسی کمار خانے میں ہار دی، اور عدم کے دروازے سے اڑتا ہوا او ادنا کے اصلی گھونسلے میں پہنچ گیا۔ میں نے اپنا نسب دنیا، آخرت اور بہشت سے اس روز قطع کر لیا تھا جبکہ انا من اللہ کا نسب اپنے لیے درست کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو نسب
हुदूस यानी नौ पैदा शुदा से मुतल्लिक है, वो जरूर मुनक़ता हो जाएगा, लेकिन मेरा नसब बाकी रहेगा। मेरे हस्ब नसब के सिवा बाकी सारे हस्ब नसब मुनक़ता होने वाले हैं। और दूसरों की निस्बत फरमाया, फला नसाब बैनहुम यौमाइज़ वला यतसाअलून, उस दिन इनमें हस्ब नसब नहीं होगा और ना वो आपस में पूछेंगे। और हर मैदान में सब पर फाइक रहा। अगर फितरत में पहले था तो सबसे पहला फल जो फितरत के दरख्त पर था मैं ही था। अव्वल खलक़ल्लाह नूरी, सबसे पहली चीज जो अल्लाह ताला ने पैदा की वो मेरा नूर था। कयामत के मैदान में भी जो मोती सबसे पहले मिट्टी की सीपी से निकलेगा मैं ही हूंगा। कयामत के दिन सबसे पहले मैं ही जमीन से निकलूंगा। अगर शफात का मुकाम होगा तो सबसे पहला शख्स जो गुनाह के दरिया के गर्कशुदों की शफात करेगा मैं ही हूंगा। अना अव्वल शाफिउन मशफाउन, सबसे पहले शफात करने वाला मैं हूं। और पुल सिरात पर भी मैं ही पेशवा और रहनुमा बनूंगा और सबसे पहले ही उसी पर कदम रखूंगा। सबसे पहले मैं ही पुल सिरात को उबूर करूंगा और बहिश्त में सदरे जन्नत भी मैं ही हूंगा। सबसे पहला शख्स जिसके लिए बहिश्ती दरवाजे खोले जाएंगे मैं हूंगा। और आशिकों का सरदार और मुश्ताकों का पेशवा बनकर सबसे पहले मैं ही माशूक की दौलत विसाल हासिल करूंगा। सबसे पहला शख्स मैं ही हूंगा जिसके लिए अल्लाह ताला तजल्ली करेगा। लेकिन ये अजीब बात है कि सब कुछ तो मैं हूंगा मगर मुझ में मैं ना होगी। हूं तो सब कुछ मैं ही, लेकिन मैं नहीं रखता। ये जो मशहूर है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ना था, बिल्कुल ठीक है। इसकी दो वजह हैं। एक ये कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफताब थे, चुनाचे आपके हक में सिराजन मुनीरा आया है और आफताब का साया नहीं होता, इसलिए जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया भी ना था। दूसरी वजह यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बादशाह थे और बादशाह खुद साया होते हैं। अल सुल्तान जिल्लल्लाह, बादशाह खुदा का साया होता है और साये का साया हो नहीं सकता। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलकत से सरोकार होता तो वो बेमंजिला नूर बख्शने वाले आफताब के होते। पहली और आखिरी खलकत को जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के नूर से पैदा किया गया और जनाब ही के नूर से उन्होंने हिदायत पाई। और जब अल्लाह ताला से सरोकार होता तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाहे इलाही के साया होते, ताकि गुमराही के जंगल का भूला भटका हक की तरफ भागना चाहे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी और दौलत की पनाह में जाए। जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करता है वो दरअसल खुदा की ताबेदारी करता है। और जिस वक्त अपने आप का ख्याल होता उस वक्त साया हक की तरफ गुरेज करते। अल्लाह ताला के साथ मेरा एक ऐसा वक्त है जिसमें कोई मुकर्रब फरिश्ता या नबी मुरसल मेरी बराबरी नहीं कर सकता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे अहले आलिम के आफताब थे, लेकिन मैं अपने परवरदिगार के यहाँ रहा के परवरिश याफ्ता थे और यतामनी के दस्तरख्वान से निवाला हासिल करते थे और यस्कईनी के जाम से शराब नोशे जाम फरमाते थे। अगरचे ये सब रसूल हैं, हमने बास को बास पर बुजुर्गी इनायत की है कि बेमौजिब अंबिया अलैहिस्सलाम में से हर एक उम्मत का काफिला सलार हो गुजरा और सब के सब बरगजीदा थे। हर एक किसी खास उम्मत का पेशरो था और कयामत के रोज उसी उम्मत को बाहर ले जाएगा। लेकिन पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब के काफिला सलार हैं, जिन्होंने निहायत मेहरबानी से अदम से कदम बाहर रखा और मौजूदात के काफिले की पेशरवी की और वजूद के सहरा में ला डाला। नहनुल आखिरून साबिकून, हम सबसे बाद में आने वाले हैं लेकिन सबसे साबिक हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया पर 6 चीजों से फजीलत दी। 6 चीजों से मुझे तमाम अंबिया पर फजीलत हासिल है और काफिले की वापसी के वक्त जो पेशरो होता है वो सबसे पीछे होता है। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हुए। जिस तरह पहले पहल नबुव्वत का खुतबा आसमानों में आपके इसमें मुबारक से था, मैं उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मट्टी में थे
آخر میں بھی تمام روئے زمین پر ختم نبوت کا سکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پر ضرب کیا گیا۔ وہاں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی ہو۔ اس سے پیشتر ہم مشرح بیان کر آئے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفرینش کے درخت کا بیج بھی تھے اور پھل بھی، اور باقی انبیاء اس درخت کے پتے اور شاخیں تھے، اور جب تک پتے اور شاخیں نہیں نکلتی پھل نہیں لگتا، اور جب پھل آتا ہے تو پھر کوئی شاخ یا پتا نہیں نکلتا، پھل سب سے آخر ہوتا ہے اور پتوں اور شاخوں کا نکلنا اسی پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہودی اور آتش پرست ہم سے یہ سوال کریں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی کیا دلیل ہے، اور اگر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر تھے، تو یہ کس طرح لازم آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین باقی مذہبوں کا ناسخ ہے، اور یہ کس طرح لازم ہو سکتا ہے کہ مختلف امتوں کے لوگ اپنے اپنے مذہب کو چھوڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں؟ چونکہ ہر پیغمبر کے پاس خدا کا کلام موجود ہے، وہ کس طرح منسوخ ہو سکتا ہے؟ اور بات لازم کیوں نہیں کہ ہر شخص اپنے مذہب کا پابند رہے، جیسا کہ دوسرے نبیوں کے وقتوں میں ہوتا رہا ہے، تاکہ تمام مذاہب اور کتب سماوی برقرار رہیں؟ اس کا جواب دو طرح پر دیا جا سکتا ہے، ایک ازرو عقل اور دوسرا ازرو حقیقت۔ ازرو عقل تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہی سوال تم پر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم کس دلیل سے موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر ہونا ثابت کرتے ہو، حالانکہ تم نے ان کو یا ان کے معجزوں کو نہیں دیکھا؟ ان کا جواب دو طرح سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو یہ کہیں گے کہ ہمیں سلسلہ دار موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کی خبر پہنچتی رہی اور تواتر علم کا موجب ہے اور معجزہ نبوت کے صحیح ہونے کا موجب ہے، یا یہ کہیں گے کہ چونکہ ہمیں دلی تصدیق حاصل ہو گئی ہے جو نور ایمان کا نتیجہ ہے، اس لیے ہمیں کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو ہم بھی کہیں گے کہ ہماری دلیل بھی بینہ یہی ہے، کیونکہ ہم نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تواتر سے معلوم کیے ہیں، اور دلی تصدیق جو نور ایمان کا نتیجہ ہے وہ فی الحقیقت ہمیں حاصل ہے، کیونکہ اس پر تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی کتابوں کا ایمان ہے۔ نہ تمہاری طرح کے بعض انبیاء اور بعض کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض پر نہیں، جیسا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی کتاب کا یقین نہیں کرتے، اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا فرزند اور ثالث ثلاثہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نسبت جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اس سے بالکل پاک ہے اور اعلیٰ اور بڑا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہر ایک پیغمبر کا معجزہ اسی کے عہد میں ہوتا رہا، اور جب عہد گزر گیا تو معجزہ ساتھ ہی چلا گیا۔ لیکن دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی قرآن مجید کا معجزہ جو ازاں جملہ ایک تھا، جب تک جہان باقی ہے وہ بھی باقی رہے گا۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک عرب اور ایران کے تمام فصحاء جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے آئے ہیں، کوئی بھی ویسی مثال پیش نہ کر سکا جیسا کہ خود قرآن میں اس معجزہ کی خبر اس طرح پر ہے۔ اے پیغمبر، انہیں کہہ دے کہ اگر انسان اور جن سب متفق ہو کر اس قرآن کی مثال پیش کرنا چاہیں تو بھی اس کی مثال پیش نہ کر سکیں گے، خاص باز بات کی مدد ہی کیوں نہ کریں۔ اس سے بڑھ کر اور عجیب معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ باوجود اس قدر دشمنوں اور حاسدوں کے جو شرق اور غرب میں تھے، اور عرب و عجم کے بڑے بڑے فصحاء اور بلاغا اور اہل کتب و فلسفہ اور زندیقی حکما جو عالم کو قدیم جانتے تھے اور حشر و نشر کے منکر تھے، اور قرآن مجید کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سمجھتے تھے، انہوں نے بھی اس عظمت کا دعویٰ کیا۔ لیکن سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج 1200 سال گزر گئے، لیکن کسی نے قرآنی دعوے کو باطل نہ کیا اور ایسی کتاب پیش نہ کر سکے، نہ اکیلے اور نہ مل کر اور نہ ایک دوسرے کی مدد سے۔ اور ان خبروں کی سچائی جو عین معجزہ ہے خود بخود عیان ہے۔ یہی حال ان خبروں کا سمجھ لو جو خواجہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہیں، سب کی سب ایک ایک کر کے ظاہر ہو جائیں گی، خصوصاً تتاری ملعون کافروں کا واقعہ
खुदा उन्हें खारिज करे। उसकी निस्बत आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत तुर्क कौम से जंग न करेगी। और तुर्क लोगों की ये पहचान है कि उनकी आंखें छोटी और नाक चपटी और चेहरे चौड़े, जैसे कि डाल पर से चमड़ा उतार लिया गया हो, और कत्ल बहुत होगा। ये फरमान बिल्कुल ठीक निकला। अभी हमें बेफिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में और बहुत सी खबरें मुंदरज हैं, ताहाल जो जाहिर नहीं हुई। ऐ परवरदिगार, हम तीनों दुनिया में तुझसे माफी, आफियत और रंजो बीमारी से खुलासी चाहते हैं, और तेरे फजलो करम से तेरी हस्बे मंशा अपना खातिमा चाहते हैं। बस अहले किताब ने जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत को उनके मोजज़ात की मतवातिर खबरों से मान लिया है, अगर दुश्मनी ना करते तो मुनासिब था कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर भी ईमान लाते, क्योंकि अहद भी ज्यादा करीब है और खबरें भी मतवातिर और झूठ से खाली हैं, और कुरानी मोजज़ा और ख्वाजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अखबारात जाहिर हैं। लेकिन बात असल में ये है कि यहूदियों और ईसाइयों का ईमान अक्ली नजर और तस्दीक के नूर की वजह से नहीं, बल्कि महज उन्होंने अपने वालिदैन से बगैर बय्यन दलीलों के बतौर तकलीद हासिल किया है। जैसा कि फरमाया है, हमने अपने आबाओ अजदाद को एक उम्मत के तरीके पर पाया और हम भी उन्हीं के कदमों की पैरवी करते हैं। और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हर एक बच्चा अपनी फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन खा उसे यहूदी बनाए या नसरानी या मजूसी, और जो दीन तकलीद से बगैर ईमानी नूर और अक्ली नजर के हासिल किया जाए वो कुफ्र है। दूसरा जवाब इस बात का कि जब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत साबित हो गई तो उससे ये किस तरह लाजिम आया कि ये दीन दूसरे दीनों का नासिख है। इस तरह पर है कि जब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत मुसल्लम हो गई तो उसे सादिकुल कौल समझना चाहिए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब को कबूल करना चाहिए। और कुरान मजीद में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब है, लिखा है कि वो ज़ात हक है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा, ताकि बाकी दीनों पर इसे जाहिर कर दे, ख्वाह मुशरिक लोगों को ये नागवार गुजरे। यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से बाकी तमाम दीन मनसूख हो गए। किताबों और दीनों के मनसूख होने से ये मुराद हरगिज़ नहीं कि उन्हें बातिल समझा जाए और उन्हें सच ना समझा जाए, और ये कि उन पर ईमान न लाया जाए, बल्कि असल बात यह है कि जो मुख्तलिफ हकायक दूसरी किताबों में थे और जो इसरार मुख्तलिफ शरीयतों में मुतफर्रिक पड़े थे, उन सबको कुरान मजीद और शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। सब खुशकोतर इस जाहिर किताब में मौजूद है। और जो दीनी नेमतों का मुकम्मल करने वाला है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास परवरिश से ताल्लुक रखता था, इसी से करते हैं। वातममतु अलैकुम नेमती, तुम पर मैंने अपनी नेमत पूरी पूरी कर दी, ताकि अगर हर एक उम्मत किसी खास पैगंबर की मुक्तदी होती और एक साहिब दौलत का ताबेदारी का फल उठाती, तो ये उम्मत तमाम अंबिया की मुक्तदी बन सके और सबकी पैरवी का फल उठाए। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, बस तू उनकी हिदायत की पैरवी कर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को दूसरी नबुव्वतों के साथ वही निस्बत है जो आफताब को सितारों से है। इब्तिदा में जबकि दीन ने कमाल हासिल नहीं किया था, खल्क़े खुदा दीन की रात में थी और हर एक उम्मत हर करन में किसी खास नबुव्वत के सितारा से राह हासिल करती रही। सितारों से वो राह हासिल करते हैं, लेकिन जब दीन के काम ने आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तुम्हें पूरे तौर पर दे चुका और तुम्हारे मजहब इस्लाम को पसंद किया का कमाल हासिल किया, तो वजूद मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आफताब को आफताब की तरह खलकत में भेजा गया। हमने नहीं भेजा तुझे मगर सब इंसानों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला। उस वक्त दीन की राह दिन में तब्दील हो गई और मालिक यौमिद्दीन की सिफ्त जाहिर हुई। सितारों की राहबरी और रहनुमाई उसी वक्त तक कायम रहती है जब तक कि आफताब न निकले। जब सुबह हो जाए तो चरागों की जरूरत नहीं रहती। जब सैयारों का बादशाह अपना जमाल दिखाता है तो शुआओं की तलवारों से सितारों की रोशनी के सर जुदा कर दिए जाते हैं। आज़रुए हकीकत इस सवाल का जवाब ये है कि मौजूदात के पैदा करने से असली मकसूद इंसानी वजूद था और इंसानी वजूद से मारिफत मकसूद थी,
اور जिसे अल्लाह ताला ने अमानत फरमाया है वो मारिफत ही है और इस अमानत का बोझ उठाने के काबिल इंसान ही हुआ। और मारिफत दीन में है जिस कदर आदमी को दीन से ज्यादा बरखुरदारी हासिल होती है उसी कदर उसे मारिफत ज्यादा हासिल होती है। जिस शख्स को दीन से बहरा हासिल नहीं वो मारिफत से भी बेनसीब है। और दीन की कमालियत के बोझ का मुतहम्मिल मुतलक इंसान हो सकता था, ना कि एक मुकर्ररा शख्स। जिस तरह फल को दरख्त सहार सकता है ना कि एक शाख। इब्तिदा में जब एक शाख जमीन से निकलती है तो उस पर फल नहीं आता तब वक्त के सारा दरख्त पूरा मुकम्मल ना हो ले। बस इंसानी वजूद दुनिया में एक है और हर एक शख्स उस वजूद के लिए बेमंजिला एक खास उज़्व के है। और अंबिया अलैहिमुस्सलात उस वजूद के अज़ाए रईसा हैं। अज़ाए रईसा से वो अज़ा मुराद हैं जिनके बगैर इंसानी जिंदगी नामुमकिन है, जैसे कि सर, दिल, जिगर, फेफड़ा वगैरह। इन सब में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमंजिला दिल के हैं। दिल हर एक शख्स में होता है और यही इंसानी वजूद का खुलासा होता है। इस वास्ते कि इंसानी वजूद में वो मुकाम जो अनवारे रूह का मजहर होता है और उसमें जिस्मानियत होती है वो यही दिल होता है। अकेला दिल दीन में मशगूल नहीं हो सकता जो कि मारिफत का फल लाता है। इसे जरूर दूसरे अज़ा की मदद की जरूरत होती है, लेकिन जो दीन का समरा है वो मारिफत से दिल ही में पैदा होता है और मारिफत की कमालियत का समरा भी दिल ही को हासिल होता है। गो दूसरे अज़ा को भी इसमें से हिस्सा मिलता है और दिल में वो खासियत है जो किसी दूसरे उज़्व में नहीं पाई जाती। वो ये है कि दिल में एक खास जान है जिसे बाकी के अज़ा जिंदगी हासिल करते हैं। और नेस दिल भी। दूसरे ये कि दिल को आलम अजसाम के खुलासा से बनाया गया है और दिल की जान आलम अरवाह के खुलासा से बनाई गई है। चुनाचे मुफरत और मुरक्कब अजसाम की सारी लताफत लेकर उसे नबातात की ग़िज़ा बनाया और जो नबातात में से लतीफ़ था उसे हैवानात की ग़िज़ा बनाया और जो हैवानों में लताफत थी उसे इंसानों की ग़िज़ा बनाया और जो इंसानी ग़िज़ा की लताफत थी उससे आदमी का बदन बनाया और जो बदन की लताफत थी उससे दिल की सूरत बनाई। और इसी तरह अरवाह इंसानी अरवाह मुल्की की लताफत से बने और अरवाह मुल्की अरवाह जिन्न की लताफत से और अरवाह जिन्न मलकूतियात की लताफत से। जो इंसानी रूह की लताफत थी उसे लेकर दिल की जान बनाया। बस इस बयान के मुताबिक दिल जिस्मानी और रूहानी दोनों आलिमों का खुलासा हुआ, इसलिए मारिफत का मजहर दिल ही बना। इसी वास्ते फरमाया है उनके दिलों में ईमान लिखा गया। इंसान में कोई मुकाम सिवाय दिल के किताबत हक के काबिल नामालूम हुआ और कोई मुकाम सिवाय दिल के मुकर्रबीन अल अस्बाइन के मुनासिब मालूम ना हुआ। चूंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की मानिंद थे, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान भी एक खास अता हुई जो किसी दूसरे नबी को नसीब ना हुई। और नबूवत की जान जो तमाम नबियों को हासिल थी वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हासिल थी। अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसे अपने अमर से रूह की अलकाह करता है, लेकिन खास जान। और इसी तरह हमने तेरी तरफ अपने अमर से एक रूह बतौर वही इरसाल की हर शख्स को हासिल नहीं होती। और यही मुकाम महमूद है जो शफाअत की हकीकत है और जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखसूस है। और जनाब के फजाइल से एक ये भी है और मुझे शफाअत हासिल हुई। इसी तरह फिर अल्लाह ताला अपने बंदे पर हुक्म भेजा जो भेजा, इसका इस्तेहकाक भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मिला जो बेमंज़िला कुतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान के था। और कुर्ब और अदना का शर्फ भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हासिल हुआ जो बेमंज़िला मुकर्रबीन अल अस्बाइन के था। बस जिस तरह मारिफत में तमाम आज़ादिल किताबें हैं इसी तरह नबूवत में तमाम अंबिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबें हैं। इसी वास्ते सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अगर मूसा और ईसा जिंदा होते तो मेरी पैरवी की कोशिश करते। अगरचे तमाम अंबिया दीन परवरी के काम में बर सरकार थे, लेकिन दीन की कमालियत का मजहर हजरत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद मुबारक ही था। अल्लाह ताला ने कमाल हिकमत खुदाबंदी से दीन की हकीकत को अंबिया की परवरिश के तसर्रुफ में रखा। जिस तरह के गेहूं से नान तैयार होते तक
कई साहिब सनत उस्ताद काम करते हैं। कोई गेहूं साफ करता है, कोई पीसता है, कोई खमीर करता है, कोई पेड़े बनाता है, कोई चौड़ा करता है और कोई तनूर में लगाता है। लेकिन जो तनूर में लगाता है मुकम्मल उसी के हाथ से होती है, मगर बाकियों को भी अपना अपना काम करना पड़ता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त तक हर एक नबी अलैहिस्सलाम दीनी काम का खमीर तैयार करता रहा, लेकिन आतिश मोहब्बत से तबाह हुआ तनूर हबीबे इलाही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को हासिल था। जब 120,000 नुक्ता नबुव्वत से इस पेड़े की परवरिश हो गई तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में दिया वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत की है, फिर उन्हीं की हिदायत की पैरवी कर, जिन्होंने इसे मोहब्बत के तनूर में लगाया और दीन की रोटी नबुव्वत के 23 साल में कमाल को पहुंच गई। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तनूरे मोहब्बत से निकाल कर दावत की दुकान पर रखी गई, ताकि अला फितरतल मिर रुसल के कहत ज़दा भूखे इस रोटी की कीमत के बदले अपना जानो माल खर्च करें कि वजाहिदू बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में कोशिश करो। और जिस पुख्ता नान की आरज़ू में कई हजार उम्मतों ने जाने दे दी, उसके लिए कुंतुम खैरा उम्मत के साहिब दौलत मखसूस हुए। और मूसा अलैहिस्सलाम जो ऐ परवरदिगार तू अपने ख्वाने करम से जो नेमत भी मुझे भेज दे, मैं उसका सख्त हाजतमंद हूं के भूखे थे। इसी रोटी की आरज़ू में अल्लाहुम्मा जिल्नी मिन उम्मत मुहम्मद, ऐ परवरदिगार मुझे मोहम्मद की उम्मत बना पुकारते थे। अगरचे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रोटी पर काम तो करते रहे उस वक्त से लेकर जबकि ये गेहूं की हालत में थे, इस वक्त तक इसमें से कुछ ना कुछ करते रहे और अपनी कौम को देते रहे, लेकिन इसे वही खाते थे जो इस पर काम करते थे। क्योंकि इस पर सबसे पहला काम करने वाला शख्स हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और उस वक्त ये रोटी अभी गेहूं की हालत में थी, इसलिए उन्होंने उसे इसी गेहूं ही की हालत में खाया। और यही वजह थी कि मलाइका व असा आदम की तान करने लगे, इस वास्ते कि उस रोज तक गेहूं फरिश्तों के दहकानों और मुजारियों के हाथ में थी। उन्होंने उसे बहिश्ती जमीन में बो रखा था और परवरिश कर रहे थे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त तक परवरिश में मशगूल रहे। और इधर अल्लाह ताला आदम के आबोकिल को मक्का और ताइफ के दरमियान परवरिश करता रहा। जब आदम अलैहिस्सलाम मुकम्मल हो चुके तो उनकी ग़िज़ा भी बहिश्त में तैयार और मुकम्मल हो चुकी थी। फिर इम्तिहान किया गया कि क्या ये अपनी ग़िज़ा खुद भी शनाख्त करता है या नहीं। इसलिए हुक्म हुआ कि ए आदम, बहिश्त में जाकर जो मर्जी हो खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास न जाना। आदम अलैहिस्सलाम बमौजब हुक्म इलाही उस दरख्त के पास न जाते, लेकिन आन जनाब का नफ्से अम्मारा किसी खाने पर मनूस न होता, बल्कि उसी ममनू की तरफ माइल होता। जिस तरह के घोड़े के सामने थोड़ी सी घास रख दें और उसी तरह फासले पर जौ का तोबरा रखा हो और उसे कह दें कि ये घास खा ले और तोबरे के पास न जाना, वो मजबूरन घास खाएगा, लेकिन वो तोबरे की तरफ माइल रहेगा। अगर कोई शख्स आकर रस्सा खोल दे तो जरूर वो तोबरे की तरफ जाएगा। इसी तरह अगरचे 8 बहिश्तों की नेमतें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इनायत हुई, लेकिन दिल में उसी गंदम की तरफ माइल थे, मगर मजबूरी ये थी तुम दोनों इस दरख्त के पास न जाना की कैद लगा रखी थी। आखिर शैतान ने आकर कहा, क्या मैं तुझे हमेशा रहने वाला दरख्त और ना ज़ाइल होने वाला मुल्क बताऊं? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं, मुझे तेरे बताने की कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि मैं फरिश्ता नहीं कि जिसे तेरे जैसे मुअल्लम की जरूरत हो। और आदम अलैहिस्सलाम को इन सब के नाम सिखा दिए कि मकतब का पढ़ा हुआ हूं, मुझे मालूम है कि वो दरख्त कौन सा है, और तुझे भी अच्छी तरह मालूम है कि शजराए खुल्द मुल्क के अबदी का वसीला है। शायद तो दुश्मनी और कजी से कहता है ताकि मुझे हुक्म इलाही का मुखालिफ बनाए। मुझे बेशक दिलो जान से इसकी आरजू है, लेकिन पाबंदी फरमान इस अमर में माने है। शैतान ने कसम खाई और कसम के दस्तबुर्द से उसने दोनों को कसम खाकर कहा कि मैं अलबत्ता तुम्हें नसीहत करता हूँ। फरमान की पाबंदी आदम अलैहिस्सलाम के पांव से दूर की। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी सादगी और साफ दिली से उसकी तरफ देखा और ख्याल किया कि जो शख्स अल्लाह ताला की अज़मत की कसम खाता है वो झूठा नहीं होगा। जब उन्होंने कसम सुनी तो नहायत नेक दिली से सिफाते इलाही सुनकर फरीफ्ता हो गए। और वाकई आशिकों की निशानी भी यही है कि माशूक के सिवा दोनों जहान पर भी फरीफ्ता नहीं होते। अल्लाह ताला ने जो बाज पुरस की तो वो इस वास्ते न थी कि गेहूं उसके लिए बनाई गई थी,
जैसा कि पीर हरवी फरमाते हैं, इब्लीस ने तो आदम को धोखा दिया, लेकिन गेहूं को आदम की रोजी किसने बनाया? अगरचे गेहूं की परवरिश फरिश्ते करते थे, लेकिन उनको ग़िज़ा की जरूरत न थी। इसका खाने वाला आदम अलैहिस्सलाम था। बाज पुरस सिर्फ इस वास्ते हुई कि उन्होंने शैतान के हुक्म से खाई। इसी वास्ते जहान में शोर बरपा हो गया कि आदम अलैहिस्सलाम ने नाफरमानी की। इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत थी, जिसकी इत्तिला फरिश्तों को हरगिज़ न थी। वो इसी ख्याल में थे कि इतने हजार साल से हम एक लतीफ दरख्त की परवरिश कर रहे थे, जिसका जवाल आठों बहिश्तों की आराइश है। इस नारासीदा बच्चे ने आकर बेफरमानी की और बच्चों की तरह उसकी शाख को तोड़ा और खाकर नाचीज कर दिया। हमें तो पहले ही से मालूम था कि वो फसाद करेगा। क्या तू इसको बनाता है जो इसमें फसाद बर्पा करेगा? सो अब इसने यही फसाद बर्पा कर दिया। अगर इस गेहूं को ना खाता और तबाह ना कर देता तो इस दरख्त के हर दाने से दरख्त पैदा होता। इन्हें ये मालूम न था कि जब बोएंगे तो दरख्त होगा और जब खाएंगे तो मर्द होगा। ये एक बड़ा भारी वेद है जिस तक हर शख्स की अकल नहीं पहुंच सकती। गर्ज ये कि वो तानो तशनी सिर्फ इस वास्ते थी कि दीन की गंदम उसके अहद तक अभी परवरिश में थी और किसी ने उसे खाया न था, और आदम अलैहिस्सलाम को उस पर मेहनत करनी चाहिए थी और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम भी इस पर दस्तकारी करते, और जब पक जाती तो उस्ताद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में देते और फिर उसमें से हर शख्स लेकर अपनी खुराक बनाता। मिसल मशहूर है कि जो शख्स मट्टी करता है वो मट्टी खाता है। आदम अलैहिस्सलाम ने गेहूं पर काम किया, इसलिए गेहूं खाई, लेकिन जिन्होंने आटे पर काम किया उन्होंने आटा खाया। चूंकि मोहब्बत मोहम्मदी के दरूर से रोटी पक कर निकली, इसलिए दावत मोहम्मदी की दुकान पर रखी गई और मनादी की गई कि मुख्तलिफ दिनों में जिसे आतिश मोहब्बत की पकी हुई रोटी मतलूब हो और दरगाह इलाही का महबूब बनना चाहे, वो हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुकान पर आए। ऐ मोहम्मद, कह दे कि अगर तुम अल्लाह ताला को मोहब्बत करते हो तुम मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुम्हें मोहब्बत करेगा। बस दीन की तरबियत चूंकि इंसानी रस्ते से हासिल होती है, इसलिए हर एक नबी व मंजिला उज़्व के था। हर एक ने माया दीन के खमीर पर अपनी कमाल दस्तकारी की, यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, जो कि इंसानी वजूद में बमंज़िला दिल के थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपनी दस्तकारी की और दीन अपनी कमालियत को पहुंच गया। इसलिए किसी मुरब्बी के तसर्रुफ का मोहताज ना रहा, क्योंकि किसी अहद में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, और जो ज्यादती कमाल पर हो वो ऐन नुकसान होती है, जैसा कि अल ज़ियादतु अलल कमाल नुकसान से जाहिर है। और यही वजह है कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस शख्स ने हमारे दीन में कोई नई शाख निकाली जो इससे नहीं, बस वो मरदूद है। और नेज़ फरमाया, तुम्हारे लिए नई बात पैदा करना जरूरी है, बेशक बिद्दत गुमराही है। दीन में बहुत सी सिफ्तें हैं, हर एक नबी ने एक खास सिफ्त को दर्जा कमाल तक पहुंचाया। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम ने सफूद की सिफ्त को कमाल तक पहुंचाया और नूह अलैहिस्सलाम ने दावत की सिफ्त को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खिल्त की सिफ्त को, मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकालमत की सिफ्त को, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र की सिफ्त को, याकूब अलैहिस्सलाम ने हुस्न की सिफ्त को, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिद्दीकी की सिफ्त को, दाऊद अलैहिस्सलाम ने तिलावत की सिफ्त को, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र की सिफ्त को, याहया अलैहिस्सलाम ने खौफ की सिफ्त को और ईसा अलैहिस्सलाम ने उम्मीद की सिफ्त को, और अला हासिल कयास हर एक नबी ने एक खास सिफ्त की दर्जा कमाल तक परवरिश की। अगरचे उन्होंने बाकी सिफात की तो परवरिश की, लेकिन एक पर एक गालिब आती गई। मगर जो सबसे आला सिफ्त थी, यानी सिफ्त मोहब्बत, वो सिवाय हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और किसी से दर्जा कमाल को ना पहुंची। इस वास्ते के हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी वजूद में बमंज़िला दिल के थे और मोहब्बत की परवरिश करना सिर्फ दिल ही का काम है। और दीन की कमालियत मोहब्बत की कमालियत पर मुनहिसर है। और फसौफ याती अल्लाह बिकौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु की कबा, इसी उम्मत को मरहमत हुई और वजूह यौमाइज़िन नाज़िरतन इला रब्बिहा नाज़िरा की करामत एक शमा थी जो इन परवानों जैसे खरमन सोख्तगों के लिए रोशन की गई थी। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को मनोसलवा दिया गया
और अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को दस्तरख्वान भेजा गया तो इन तलछट तक उड़ा जाने वाले गोदड़ी पोशों और घर को बीच डालने वाले रिंदों को शराब शहूद का घूंट जिस कदर वसकीम रब्बिहिम का साकी जामे जमाल से इनके वजूद की कुंद जुबान पर डालता है, इसी कदर उस शराब के दौर से अनल हक व सुबहानी का जंगो जदल बर्पा होता है। लेकिन वजूद बरादाख्त का खाना एक ऐसी कवा है जो इन परेशान हाल जवारियों के कद के सिवा किसी जिस्म पर ठीक नहीं आती, और शहूद की शमा पर जान जलाना सिवाय इन शिकस्ता बाल परवानों के किसी को दुरुस्त नहीं। इसलिए दोनों जहान कताबा कता दूसरी उम्मतों को दिए गए और इज्जत का खैमा इन गदायों की बारगाह दौलत में नसीब करते हैं कि मैं इनके टूटे हुए दिलों के नजदीक हूँ। जो दीन की कमालियत सिर्फ मोहब्बत की कमालियत पर मौकूफ थी, और ये हजरत पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जो कि इंसानी वजूद में बमंज़िला दिल के थे पूरी हुई। इसलिए हजरत हबीबुल्लाह और खातिमुल अंबिया हुए और जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दूसरे दीनों का नासिक हुआ। जिस शख्स को दीन की कमालियत और महबूबियत का मर्तबा मतलूब हो उसे फत्ता बऊनी युहबिबकुमुल्लाह के मुताबियत के खत पर सर रखना चाहिए, और चूंकि कमाल इसी दीन में है इस वजह से दूसरे दीन मनसूख हो गए। जैसा कि जहां पानी मिल जाए वहां खाक से तयम्मुम करना जायज नहीं रहता। पहले हम बयान कर आए हैं कि दूसरे अंबिया के अहद में गेहूं, आटा और खमीर खा सकते हैं। अब जबकि रोटी पककर तैयार हो चुकी उनका खाना जायज नहीं, बल्कि उन अंबिया अलैहिस्सलाम को इस दुकान में आकर नान बाई से रोटी लेनी चाहिए कि इंसानों को मेरी शफात की एहतियाज है। और अभी ख्वाजा अलैहिस्सलाम फराख हौसलगी के सबब इस नान और नानवाई से सैर नहीं होते और फरमाते हैं मैं बनी आदम का सरदार हूँ, और ये अज़रुए फख्र नहीं कहता। ये क्या इशारा है? ये निहायत ही लतीफ इशारा और निहायत ही लतीफ ज़रीफ है। यानी कि ये सब नानबाई, सियादत, झंडावारी और पेशवाई मुझे खलकत का नसीबा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तुझे अहले जहान के लिए बायस रहमत भेजा है। बस ये सब कुछ उनके लिए जाए फख्र है, क्योंकि वो मुझ जैसा सरदार, मुक्तदा, काफिलाए सालार, रहनुमा और शफात का निंदा रखते हैं। लेकिन उनमें से मेरा हिस्सा बेनसीबी है, और मेरा मकसूद नामकसूद मंदी, और मेरी मुराद नामुरादी, और मेरी हस्ती नीस्ती, और मेरा फख्र है। अल फक्रू फखरी, मैंने यानी मुसन्नफ़े किताब इस बारे में एक रुबाई कही है। रुबाई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें क्या भेद है कि जनाब पेशवाई और अंबिया के सरदार होने पर फख्र नहीं करते और फख्र पर फख्र करते हैं, सिर्फ इस वास्ते कि हमारी राह इश्क व मोहब्बत है, और ये राह सवाए नीस्ती के तह नहीं हो सकती, और पेशवाई और सरफरी हस्ती है। रुबाई, काफिरों की जमात ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबो दंदान मुबारक को आजमाइश के पत्थर से तोड़ा, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि दंदाने मुबारक जाहिर कर दें, लेकिन अभी लब भी ना हिलाने पाए थे कि हुक्म इलाही सादिर हुआ, अमरे इलाही में तेरा कुछ दखल नहीं। बड़े ताज्जुब का मुकाम है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से तो ऐसा मामला ना हुआ था, जबकि उन्होंने अर्ज की थी कि ऐ परवरदिगार, काफिरों में किसी को भी तुरुए जमीन पर ना रहने दे, तो फौरन सारे जहान में तूफान आ गया था और सबको हलाक कर डाला था। बेशक ये ठीक है, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम सिफ्ते कहर के मजहर थे, वो अपनी राह चले। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ्ते लुत्फ व मोहब्बत के मजहर थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह दूसरों के हक में रियायत करना है। बस यही वजह है कि पत्थर खाकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ परवरदिगार, मेरी कौम को हिदायत कर, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं ये किस किस्म का तसर्रुफ था। ख्वाजा अलैहिस्सलाम के लिए नीसी और गुम होना इस वास्ते सामने रखी गई ताकि हस्ती को नीस्ती में गुम कर दें, क्योंकि मजाजी हस्ती के वजूद के होते हुए हकीकी हस्ती के वजूद की कमालियत हासिल नहीं हो सकती। बेशक जिस कदर तू अपनी मजाजी हस्ती को खर्च करेगा, उसी कदर हस्ती हकीकी की राह में ईंधन को आग से नसीबा हासिल होगा। हस्ती के वजूद को ईंधन समझ लो। अब हस्ती के ईंधन को आतिश हस्ती पर फिदा करना चाहिए, ताकि सफली जुल्माती और कसीफ ईंधन लतीफ, नूरानी और अलवी आग बन जाए।
लेकिन जब तक ईंधन की हस्ती से कुछ भी बाकी है, धुआं पैदा होगा। वो धुआं असल में आग की तलब करता है, क्योंकि ईंधन ने आग का ज़ौक मालूम कर लिया है। ईंधन की हालत में रहने पर राजी है। वो चाहता है कि उसका सारा वजूद आग हो जाए। रुबाई, बस इस हालत में जो आग ईंधन को मिले उसको अपने लिए रखे, दूसरों को कुछ नहीं दे सकती। और जब ईंधन अपने तई सबका सब आग पर फिदा कर चुकता है, तो उसके बाद अपना वजूद और जो आग से मिले वो दूसरे ईंधन के लिए होगी, ना कि उसके लिए। ये बड़ा भारी भेद है। 1,00,000 नुक्ता नबुव्वत ने वजूद बशरा के ईंधन को आतिश मोहब्बत और सिफात हक की तजल्ली पर फिदा किया था, लेकिन हर शख्स से नीम सोख्ता ही रहा। और यही वजह है कि कयामत के दिन हर एक से नफसी नफसी की आवाज निकलेगी। लेकिन पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवाने की तरह जमाल अहदियत की शमा पर अपना वजूद मुबारक फिदा कर दिया था। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती पुकारेंगे, और शमाए जलाल का शोला उसी का शोला हो गया। और आदम अलैहिस्सलाम के बाकी फर्जंदों ने सबको मुनक़ता करने के लिए फरमाया, मा काना मुहम्मद अबा आदम मिन रिजालिकुम वलकम रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी का बाप तो है नहीं, वो खुदा का भेजा हुआ और खातिमुन नबिय्यीन है। मैंने यानी मुसन्नफ़ किताब इस बारे में एक रुबाई कही है। रुबाई, ये बात जो मशहूर है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया न था। इसकी यही वजह है कि जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नूर हो गए थे। ऐ लोगो, तहकीक तुम्हारे परवरदिगार से तुम्हारे पास नूर आया है, और नूर का साया नहीं होता, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साये से खुलासी पाई थी। इस वास्ते तमाम जहान जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की पनाह लेने के लिए दौड़े कि आदम और उसके अलावा जितने हैं कयामत के रोज सब के सब मेरे झंडे तले होंगे। सबसे पहले भी नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पैदा हुआ। जैसा कि अव्वलामा खलकल्लाहु नूरी, जो चीज खुदा ने सबसे पहले पैदा की वो मेरा ही नूर था से जाहिर है, और अब अबद की हद तक भी पहुंचा। जैसा कि इल्ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा से जाहिर है। जब से दौलत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आफताब तुलू हुआ, तब से विलायत अंबिया अलैहिस्सलाम के सितारे गायब हो गए और दूसरे दिनों की रात की आयत मनसूख हो गई। इस वास्ते कि जब सुबह हो जाती है तो चराग की जरूरत नहीं रहती। अगरचे मेरी सूरत का आफताब कुल्लु नफ्सन जायकातुल मौत के मगरिब में गुरूब हो जाएगा, लेकिन दीन का आफताब जब तक जहान बाकी है दीन परवर और हक गुस्तर उलमा की वजह से बाकी रहेगा। जैसा कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा ऐसा रहेगा जो हक पर कायम होगा से जाहिर है। इसके होते साथे दूसरे अंबिया की क्या जरूरत है, क्योंकि इस उम्मत के उलमा दूसरी उम्मतों के पैगंबरों के बराबर हैं। जैसा कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के पैगंबरों जैसे हैं से जाहिर है। दीन दो तरह का है, एक जाहिर, दूसरा बातिन। जाहिरी दीन तो मुत्तकी आलिमों के सबब कायम रहेगा और बातनी मशाइख तरीकत के सबब, क्योंकि शेख का मर्तिबा अपनी कौम में ऐसा होता है जैसा नबी का मर्तिबा उम्मत में। अल्लाह ताला ने इन दोनों ग्रोहों के वसीले दीन की हिफाजत का जिम्मा लिया है कि हमने जिक्र उतारा और हम ही उसकी निगहबानी करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी, और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।